Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Students, welcome to new class. I am your computer teacher. Welcome to e-learning. Dear students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school. But unfortunately, the unfavorable condition did not allow to materialize the program, and resultantly, we had to adopt the source of online system to keep the student in touch with their studies without break. Stay home, stay safe. I warmly welcome to new class. This is your chapter number 1, topic machine. The computer is a machine. It looks like a television. It can show picture like a TV. Can your TV do any homework for you? No, but a computer can. आज आपका जो नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 से है. टॉपिक इज मशीन. Chapter number 1 is computer essential. टॉपिक मशीन. अभी जो मैंने आपके सामने पैराग्राफ रीड किया था, इसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर एक मशीन है. इट लुक लाइक अ टेलीविजन, जो कि टेलीविजन की तरह दिखता है. इट कैन शो पिक्चर लाइक अ टीवी. ये पिक्चर शो करता है टीवी की तरह. कैन योर टीवी डू एनी होमवर्क फॉर यू. क्या आपका टीवी कोई होमवर्क आपके लिए करता है? नो, बट अ कंप्यूटर कैन. कंप्यूटर ये काम आपका करता है. कंप्यूटर आपका होमवर्क भी करता है. कंप्यूटर आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. ये कंप्यूटर है. ये जो आप देख रहे हैं ये सीपीयू है. ये मॉनिटर है. ये कीबोर्ड है और ये माउस है. If you want to do sum on the computer, you can do so. If your mummy want to keep information about her monthly expenses, she can also do it using a computer. If your daddy wants to do some office work, he can do it sitting at home just by connecting his computer at home to the computer in his office. So, does it mean that there is some kind of magic involved in computer for doing such jobs? No, not at all. All these are the capabilities. All these are the abilities
that are built into computer at the same time of its manufacturing. There are different types of computer. The one that are the one that we are talking about is called PC, personal computer. It is also called so because it can be used for all our personal jobs. Computer have many advantages over manual work. I again read, if you want to do some on the computer, you can do so. If your mummy wants to keep information about her monthly expenses, she can also do it using a computer. If your daddy wants to do some office work, he can do it sitting at home just by connecting his computer at home to the computer in his office. So, does it mean that there is some kind of magic involved in computer for doing such jobs? No, not at all. All these are the abilities that are built into the computer at the time of its manufacturing. There are different types of computer. That one that we are talking about is called a PC, personal computer. It is called so because it can use for all personal job. Computer have many advantages over manual work. अगर आप कंप्यूटर की मदद से अपने सम सॉल्व करना चाहते हैं तो कंप्यूटर आपकी जो है वो सम सॉल्व कर सकता है. अगर आपकी मदर मंथली एक्सपेंसेस जो घर के मंथली बजट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन सेव करना चाहती हैं तो वो इस कंप्यूटर के ज़रिए इसको सेव कर सकती हैं. अगर आपके डैडी ऑफिस वर्क करना चाहते हैं घर में बैठे हुए तो वो कंप्यूटर की मदद से घर बैठे भी ऑफिस के वर्क कर सकते हैं. क्या इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में क्या कोई ऐसा जादू है जो कि तमाम काम कर देता है? ऐसा कुछ नहीं है. असल में इसमें कुछ एबिलिटीज़ बिल्ड की जाती हैं जिसकी मदद से हम इससे मुख्तलिफ काम ले सकते हैं. कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स हैं. हम जिस टाइप की बात कर रहे हैं, जिस काइंड ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं वो पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर है. इसको इसलिए कहा जाता है कि ये पर्सनल जॉब के लिए यूज़ किया जाता है. कंप्यूटर हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर मैनुअल वर्क. The efficiency of human can be compared to the computer in the following manner. अब आपको यहाँ पे कंप्यूटर का ब्रेन और इन ह्यूमन ब्रेन की एफिशिएंसी के बारे में बताएंगे कि ह्यूमन ब्रेन की जो एफिशिएंसी है और कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी मुख्तलिफ है. ये ह्यूमन बीइंग है, ये अपने ब्रेन से किस तरह काम लेते हैं. कंप्यूटर अपने सिस्टम से किस तरह काम लेता है, अपने ब्रेन से किस तरह काम लेता है. ये ह्यूमन बीइंग के काम हैं और ये कंप्यूटर के. ये ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर्स हैं और ये कंप्यूटर के कैरेक्टर्स हैं. ह्यूमन बीइंग गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम. इंसान जो है वो थक जाता है कुछ देर काम करने के बाद, जबकि कंप्यूटर
नहीं थकता, नेवर गेट टायर्ड्स। ह्यूमन मेक मिस्टेक, इंसान से गलती हो सकती है। कांट मेक मिस्टेक, जबकि कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होगी। कैन मेक, डज वर्क स्लोली, इंसान थोड़ा स्लो काम करता है, हमसे थोड़ा स्लो काम होगा। डज नॉट गेट बोर्ड बाय रिपीटेटिव टास्क, अगर कोई डज वर्क स्लोली, वर्क फास्ट। अगर देखा जाए तो हम जो काम करेंगे, अगर कोई बहुत बड़ा काम होगा तो वो बहुत स्लो काम हो हम कर सकते हैं और बहुत देर में होगा, जबकि वही काम हम कंप्यूटर पे करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। गेट बोर्ड बाय रिपीटेटिव टास्क, अगर हम किसी टास्क को दोबारा रिपीट करते हैं तो हम बोर हो जाएंगे, जबकि कंप्यूटर बोर नहीं होता, वो बार बार टास्क को रिपीट कर सकता है। कैन थिंक ऑफ हिमसेल्फ, इंसान अब खुद सोच के अपना काम करता है, जबकि हम कंप्यूटर से काम लेते हैं, कंप्यूटर नहीं सोचता। हम जो काम दे रहे होते हैं वो काम वो करके देता है। कान थिंक ऑन इट्स ओन, वो नहीं सोचता। कैन फॉरगेट इवेंट्स, डेट्स, जॉब्स, आंसर, नेम्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम जो हैं बहुत कुछ भूल सकते हैं। जॉब्स, डेट्स, इवेंट्स, नेम बहुत लंबे अरसे के बाद, जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, जबकि ये एक पूरा डाटा सेफ रखता है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये डेट, जॉब्स, आंसर, नेम, एवरीथिंग जो है वो याद रखता है, भूलता नहीं है। कैन ऑल्सो वर्क विदाउट ऑर्डर, इंसान जो है बगैर किसी ऑर्डर के काम कर लेता है, जबकि कंप्यूटर को जब हम ऑर्डर करेंगे तब वो काम करेगा। कैन टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, इंसान खुद अपने फैसले कर सकता है, जबकि कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि कितनी कितना डिफरेंस है ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के ब्रेन में। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो इंसान से बेहतर है। नो, देयर आर सम एरियाज वेयर कंप्यूटर कैन नेवर compete with human capabilities। हम कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने ह्यूमन को अपनी एबिलिटीज़ दी हैं जो कि कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा हैं। कंप्यूटर कैन नेवर थिंक, कंप्यूटर सोच नहीं सकता अपनी तरफ से, जबकि इंसान सोच सकता है। अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत इंसान को दी है। इट हैज़ नो सेल्फ इंटेलिजेंस फॉर मेकिंग डिसीजन, उसके पास कोई अपना जहन नहीं होता कि वो कोई डिसीजन ले सके, जबकि जबकि इंसान जो है वो कर सकता है। कंप्यूटर ऑब्जर्व नहीं कर सकता, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर सकता, कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता। तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास मौजूद हैं। तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि कंप्यूटर इज़ बेटर देन ह्यूमन, ये हो ही नहीं सकता। ह्यूमन इज़ बेटर देन कंप्यूटर, दिस इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। Working of a computer is a machine
that works on the principle of IPO cycle. Computer in IPO cycle, data and instruction are entered, they are processed, stored, and finally the result is given out. Instruction and command given to computer are called input or data. Computer accept, examine and calculate the result. This is processing. The result given by computer after processing is called output. IPO साइकिल क्या है? IPO साइकिल जो इंस्ट्रक्शन और डाटा हम उसको देते हैं कंप्यूटर को, वो उसको प्रोसेस करेगा, उसको स्टोर करेगा और फाइनली उसका रिजल्ट हमें देगा। कंप्यूटर के अंदर IPO साइकिल मौजूद होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ IPO साइकिल मौजूद है। IPO साइकिल में क्या क्या मौजूद है ये मैं अब आपको बताऊंगी। इंस्ट्रक्शन एंड कमांड गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट और डाटा। वो इंस्ट्रक्शन और कमांड जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो है इनपुट या डाटा। फिर कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है, एग्जामाइन करता है, फिर कैलकुलेट करता है रिजल्ट को। ये प्रोसेस कर रहा है, दिस इज प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक्सेप्ट, एग्जामाइन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड processing. The result given by computer after processing is called output. वो रिजल्ट जो कि प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर हमें वापस देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। अब ये किस तरह से होगा, ये जो वे आपको बताया गया है ये मैं अब आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगी। दिस कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे। अ कंप्यूटर टेक in data and instruction which we feed into it using input receive such as keyboard and mouse. क्या है इनपुट? वो डाटा और इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो हम इनपुट डिवाइस के ज़रिए देते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से? कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं। प्रोसेसिंग क्या है? इट प्रोसेस एंड स्टोर द इंस्ट्रक्शन वी फीड इनटू इट यूजिंग सीपीयू। कौन से डिवाइस यूज हो रहा है इसके अंदर? सीपीयू। सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट है। इट प्रोसेस एंड स्टोर द इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है। जो कुछ हमने उसमें फीड किया था सीपीयू में, जो कुछ हमने इनपुट के ज़रिए फीड किया था उसको वो प्रोसेस करेगा। देन आउटपुट क्या है? इट गिव द रिजल्ट यूजिंग आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के ज़रिए वो हमें रिजल्ट दे रहा है, सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। अब आपको यहाँ पर ये भी पता चल गया कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन से हैं और आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। इनपुट डिवाइस इज कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस। प्रोसेसिंग में सीपीयू डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? मॉनिटर एंड प्रिंटर। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको कुछ इस तरह से दूंगी टू फर्दर अंडरस्टैंड
The IPO cycle, we can take the example of making banana milkshake. के IPO साइकिल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ जो कि बनाना मिल्क शेक का। इनपुट, हम मिल्क शेक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? मिल्क, शुगर, बनाना, हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। प्रोसेस करने के लिए हम मिक्सर में हम बनाना, मिल्क और शुगर को एक साथ मिक्सर में डाल देंगे। आउटपुट क्या बना? बनाना शेक। दिस इज IPO साइकिल। Uses of computer. Computer play a very important role in our life. They are being used in almost every field of life. Computers are being used in school for teaching, in railways and airports for ticket reservation, in hospitals, office, marketplaces, etc. कंप्यूटर हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मोस्टली फील्ड में ये यूज़ होता है। स्कूल में टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रेलवे या एयरपोर्ट पर टिकट रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और हॉस्पिटल, ऑफिस, मार्केट प्लेसेस में भी यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ये एयरपोर्ट पे यूज़ हो रहा है। ये आप देखें कि एयरपोर्ट पे यूज़ किया जा रहा है। बैंक में यूज़ होता है। कंप्यूटर इन स्कूल, कंप्यूटर इन शॉप्स, computer for playing games, computer for learning music, computer for teaching in school, computer in hospital, computer for railway reservation. Thank you so much for joining us. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपने रीड करना है बहुत अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये चैप्टर है क्या। मैंने आपको जो वीडियो के ज़रिए आपको उस चैप्टर के बारे में बताया है, इसको अच्छी तरह से समझें, वीडियो को लास्ट तक देखें, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर को रीड करें। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियो, सो आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।